Okay, so I'm considering that everything is okay at your side. Let me share my screen और हम जल्दी से अपने जो है ना वर्क की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जी अच्छा, अपने आप को म्यूट रखना। वेट अ मिनट जस्ट। जी अच्छा, एनीवन एल्स जिसका जो है ना कोई इशू हो वो मुझे अभी तक क्विकली 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 बताए। फातिमा। जी अच्छा जी, मैंने आई हैव गिवन यू द क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दैट आई वोंट म्यूट यू, rather I will remove you from the phone call because I don't know whether you're trying to create the mess or whether you're really unconscious about the class. I don't know anything about that. So be careful, your mic is muted and you are listening, or if you just want to ask the question then unmute yourself, ठीक है। तो कोई unmute ना करे because I will simply remove that participant from the meeting. जी so now I will share my screen and tell me जी quickly कि मेरी screen अब visible शुरू हो गई है। जी it is gonna be visible in just okay। अब हमारी screen visible है, recording हमारी चल रही है। technically हम अपने chapter number 14 पर आते हैं quickly कि हमारा chapter number 14 हमें कहता क्या है। ओके जी सो चैप्टर नंबर 14 में हम डिस्कस करते हैं जी हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू राइट अ मेमोरेंडम एंड द बेसिक स्टफ रिलेटेड टू द राइटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। सो लेट मी कम टूवर्ड्स दैट आई okay, so here in front of you there will be some examples of the letters and emails, and we will discuss them one by one ताकि हमें idea हो जाए that what is the written up structure of a basic writing. So in the last class we discussed that there are some cliches. Cliche क्या होता है? That is overused sentences, like for example when you write some kind of an email to the person, mostly we use attached, please find. So I hope that one participant asked from me what is a hackneyed phrase. This is also a cliche, is also called a hackneyed or overused phrase. And if you will say, obviously this is technically and grammatically correct to use that attached, please find, but it is overused and we need to avoid the overused phrases and clauses in our sentence. That is why we will use attached is and enclosed, please find. Instead of that we will use the enclosed is. So use the plain language instead of being sounding overly artificial language. You have to be very clear that what kind of idea you want to convey. Okay, so there is a short list of words that you can go through for that sake, and there is an email in front of you written with the containing cliches and with the plain language. That is discussed one by one, that what kind of language can be considered as a cliched one and what can be the plain language, and how we can tackle with that. अच्छा जी, यहाँ पर खैर I don't know why you people are trying to create some mess, but I really want all of you to be very vigilant regarding that, because I want to score some good grades in your exams, ठीक है? So for that sake, if you want to do, obviously you have to read the things, ठीक है? तो ये जो जितने भी different names से join participants है, I need to remove these participants. Anyways, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन आपकी मिड्स की कैसे करते हो, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है. I am repeating this once again. जी तो खैर वर्ड को हम अभी रिमूव करते हैं, हम अपने सिंपल डॉक्यूमेंट की ही तरफ आते हैं। जी सो लेट मी नो दैट रिगार्डिंग माय वॉइस क्वालिटी एंड माय स्क्रीन दैट इज़ परफेक्टली विजिबल। अनम्यूट करके मुझे बताओ क्विकली ताकि मैं प्रोसीड करूँ। ओके फाइन देन।
Thank you so much. Thank you so much. So email containing cliches है referring to your complaint regarding the problem encountered with your new trailer Snowball while our customer service has just submitted its report. This whole sentence, what it conveys the idea that there was a complaint and that complaint is addressed now. How? That we are addressing this complaint with new trailer snowmobile. Thank you for letting us know about your problem with your new trailer. So there is new trailer, trail rider snowmobile. ठीक है, एंड देर इज़ अ कंप्लेन फायर्ड अगेंस्ट इट. तो हम सिंपली ये लिखें कि कंप्लेन ऐसी थी वैसी थी. इंस्टेड ऑफ दैट सिंपली राइट दैट कि जी थैंक यू यू लेट अस नो अबाउट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है वो लिख दिया. ठीक है, तो प्लेन लैंग्वेज इस तरह की होती है. देन आ जाता है कंसर्न. इट इज़ देयर कंक्लूजन दैट द malfunction is caused by water being present in the fuel line. ठीक है, it is our conclusion that you must have purchased some bad gasoline. We trust you are cognizant of the fact. Cognizant होता है aware होना. ठीक है, so we trust you are the cognizant of the fact that while we guarantee our new mobiles, sorry, snowmobiles for a period of not less than 1 year against defects in workmanship and materials, responsibility cannot be assumed for inadequate care. We wish to advise for the reason mentioned herein that we cannot grant your request to repair for. अच्छा, ये अब सिंपल पता है बात क्या है. सिंपल ये है कि जैसे आप लोग कभी कभार, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हमारे साथ ही बात करते हुए टीचर्स के साथ, जब टीचर्स आपके थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और आप सोचते हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था टीचर को, तो ये गुस्सा क्यों हो गए. अब उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है आप यूज़ करते हो कुछ तरह के वर्ड्स मस्ट. ठीक है, आप अपने टीचर को मस्ट नहीं कह सकते कि यू मस्ट डू दैट. इट साउंड्स लाइक यू आर साउंडिंग अ बिट ऑब्लिगेटरी. ठीक है, ऑब्लिगेटरी ऑल्दो इज एन ऑब्लिगेटरी, बट एक तरह से तरीका होता है ना बात करने का, वो ख़राब हो जाता है. तो आपने मस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं देयर इंटेंशन इज़ रियली नॉट बैड एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वे टू देयर टीचर द बेसिक फैक्ट. ठीक है, वो बात सिंपल ही करना चाह रहे होते हैं अपने टीचर के साथ, बट थोड़ा सा उनको शायद जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है, डेट इज़ वाई दे फील कि जी यस दे कम्युनिकेटेड नॉट परफेक्टली. तो हम उस तरह की लैंग्वेज को देखते हैं कि समटाइम्स वाई वी मेक मिस्टेक्स एंड वाई देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बिटवीन अस. ठीक है, तो मस्ट का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना. एक मैं बात कर रही थी ओके थैंक यू के वर्ड की. ओके थैंक यू का मतलब ये होता है कि भाई आप फटाफट निपटा रहे हो काम को. आपने ऐसा नहीं करना. आप प्रॉपरली किसी इंसान को अगर आपका हेल्प किया है, थैंक उसको करो. थैंक इन अ प्रॉपर वे, थैंक्स फॉर बीइंग काइंड टुवर्ड्स मी, या फिर थैंक यू सिर्फ आप सिंपल लिख दो. लेकिन ओके थैंक इट क्रिएट्स बिट प्रॉब्लमेटिक स्टफ. ठीक है, तो आपने अपना जो है ना उसको क्लियर रखना है इस बात को. ठीक है, कि आपकी लैंग्वेज कहीं हार्श तो नहीं साउंड करी. देन अगर आपको एक कंप्लेन आई है, अब हम उसको डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर. जैसे इन्होंने बात की फ्यूल के यूजेज की. ठीक है, अगर हम डायरेक्ट किसी, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक इशू आ गया है उनको गैसोलीन का या इस तरह से उस प्रोडक्ट का इशू आ रहा है, और आप प्लेन वर्ड्स में लिख रहे हो द कंपनी इज़ नॉट जो है ना लाइब कंपनी इज़ नॉट आंसरेबल टू ऑल दीज क्यूरीज यू हैव टेकन आर प्रोडक्ट. तो आप हार्श नहीं वर्डिंग यूज़ कर सकते अपने क्लाइंट के साथ. सिंपली आप उसको बात समझाओ कि that there was a problem and at your side if it is caused through the company तो हम उसको फिक्स करेंगे. अगर आपकी साइड से थोड़ा सा इशू है तो वी कैन हेल्प यू विद सम एक्स्ट्रा चार्जेस. ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है. ठीक है, तो हाउ यू स्विच योर वर्ड्स, ठीक है, वो मैटर करता है, ना कि आप सिंपल प्लेन वर्ड्स में जो है ना कह दो. ये एक सिंपलेस्ट अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं तो आप किसी को जो है ना खाना उसके सामने रख के अच्छे से भी बता सकते हो कि प्लीज़ ईट दिस फूड, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हो भाई ये लो ये पड़ा है खाना. तो दोनों ही तरह आपने अपनी मेहनत तो की है ना, खाना भी प्रोवाइड किया है, बट एक वे में आपने लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट यूज़ की है एंड देन यू हैव यूज द लैंग्वेज दैट इज रियली अ बिट जो है ना हार्श. तो इस तरह से आपने कन्वे जो मैसेज अपना लैंग्वेज या अपनी मैसेज कन्वे करना होता है किसी इंसान को, उसके बारे में आप केयरफुल रहो. इज इट क्लियर टू यू गाइस? इतना तो क्लियर होती है ना बात. जी.
अच्छा, बात अब हम यहाँ पर सिंपलेस्ट पर आ रहे हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। तो अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर उसने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बता दिया, वी विश टू एडवाइस फॉर द रीजन मेंशन्ड हियर इन अबव दैट वी कैन नॉट ग्रांट रिक्वेस्ट। तो खैर कभी कभार हमें प्लेन भी बताना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे कैसे टैकल करें इसका। अब सिंपलेस्ट एक मैं तरीका अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि आप अपना लेटर, फर्स्टली आप ऐसा करना, उसको लिखना, ठीक है, या टाइप कर लेना। देन अगर आप उसको चैट जीपीटी में अपना कोई भी एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हो, आप उसको कहो कि राइट इट इन प्रोफेशनली। एक कमांड ये दो, राइट इट इन इमोशनल वे। एंड दूसरी एक और आप कमांड उसको, दो तीन चार ऐसी कमांड्स दो, राइट इट इन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन लैंग्वेज। एक और कमांड उसको आप उसको एक और कमांड। सॉरी क्लास फॉर दिस डिस्टरबेंस एक्चुअली। जी अच्छा जी, आई डोंट नो ये जो, खैर आपको पता है मेरे जो पिछले प्रीवियस बैच था उसमें कुछ स्टूडेंट्स के फेल केसेस थे और कुछ स्टूडेंट्स के 12 नंबर थे 20 में से और 9 नंबर थे। एंड कॉन्स्टेंटली दे वर ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस टू मी कि जी कैसे, हमारा पेपर तो बहुत इजी था। तो जो चेकिंग क्राइटेरिया है ना, वो आप लोगों की इन गानों शानों इन चीज़ों पे नहीं होना। वो मेरा जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, मैं उसी पर ही चेक करूँगी, बिकॉज दैट वे आई कंसीडर दैट इट इज़ नॉट द ऑनेस्टी ऑफ अ टीचर कि अगर वो अपने स्टूडेंट को 2 नंबर दे देता हूँ, 3 नंबर दे देता हूँ एक्स्ट्रा करता है, तो ऑनेस्टली मैं आपका पेपर चेक करूँगी। मैं ये नहीं कंसिडर करूँगी कि इसमें 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। जी जी जी। हाँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके मैसेज में ड्रॉप करूँगी कि आपका जो टॉपिक है आप उसको प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट क्लास में मेरे सामने डिस्प्ले करना। मैं आपको कोशिश नहीं बल्कि इंशाल्लाह क्लास में ही उसकी जो है ना रियल उसका प्रॉपर चेक करके बता भी दूंगी। बाकी मैंने अभी तक ये बताया है कि मेरा चेकिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ अब आपको जो क्वेश्चंस पोज करूंगी ना, उसी तरह के पेपर आपके पेपर में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पेपर के ही तरह के क्वेश्चंस मैं आपको पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, ठीक हो गया। जी, अगर और किसी का भी क्वेश्चन है तो वो आ जाए, और बी केयरफुल कि ये आप लोगों का टाइम है, मेरा टाइम नहीं है। सो आपने कितना मुझसे ग्रैब करना है नॉलेज या कितना गेन करना है, ये आप पर डिपेंडेंट होता है, ना कि टीचर पर, ठीक है। मैं तो कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको जितनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स बहुत रिमार्केबल परफॉर्म करते हैं, कुछ पेपर में नहीं कर पाते, तो यही रीजंस होती हैं, ठीक है। और कीप इट इन योर माइंड कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है तो ये बहुत बेनिफिशियल है हमें। अगर कोई ऐसे कहता है ना यूनिवर्सिटी टीचर्स को कि हमारा एक अनऑफिशियल या कहीं से प्राइवेट एक क्लास ले लें, तो वी कॉस्ट देम अ लॉट, उनको चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो इसको अपना बड़ा ही गोल्डन टाइम कंसीडर किया करो, बिकॉज यू आर पेइंग द यूनिवर्सिटी एज वेल एंड दिस इज़ नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम, ओके। तो अब हम छोटी सी ये बात थी, खैर डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं अपने बेसिक कंटेंट की तरफ। Attached, please find an authorization statement. Should we receive it, we shall perform the above. तो ये देखो, इसकी पहले तो हम लेंथ देखते हैं कि ये लेंथ कहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है। देन हमारी कुछ जो ओवर यूज क्लीशेस थे वो इसमें हमने देखे कि हाँ ये अटैच्ड प्लीज फाइंड, ये प्लीज का वर्ड भी कोई इतना खास यहाँ पर ज़रूरत नहीं आता, बट चलो इसको भी हम थोड़ा सा जस्टिफाई अगर करें तो आप लिख सकते हो, बट क्लीशेस कहते हैं कि ना लिखा जाए। देन आते हैं हम प्लेन लैंग्वेज की तरफ कि अच्छा प्लेन लैंग्वेज क्या है। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट द प्रॉब्लम विद योर न्यू। अब देखो सिंपल पहली ही लाइन, गुड राइटिंग क्या होती है, गुड राइटिंग ये होती है पहली लाइन पढ़कर इंसान को पता चल जाए व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। आपका जैसे अगर आप लिखते हो ना प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। अगर आपने आगे और स्पेसिफाई कर दिया प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया डेली, ठीक है, तो इट मीन्स दैट यू विल बी टेलिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फेस व्हाइल यूजिंग द सोशल मीडिया वेबसाइट्स। उसको और स्पेसिफिक किया जा सकता है, थोड़ा बता दो कौन सी वेबसाइट्स की बात है। तो जो अच्छा राइटर होता है उसकी फर्स्ट लाइन में हमें उसका जो क्यूरी है या प्रॉब्लम है या आंसर है वो मिल जाता है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, हमें प्रॉपर आइडिया हो जाता है। इसमें ये आइडिया नहीं हो रहा था क्लीशेज वाली जो आपने देखी हो ना,
यहाँ पर से मैं थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन इकट्ठा ही नजर आए, ठीक है। So our customer service department has found water in the fuel line. Apparently, some of the gasoline was bad. While we guarantee our snowmobiles for 1 year. अब उसने देखो ना गारंटी भी बता दी अगेंस्ट डिफेक्ट्स इन वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स, ये अब आपके सारे क्राइटेरिया हैं जो इसने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। वी कैन नॉट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय गैसोलीन। अब ये बात पढ़ के और यहाँ पर से सारी कहानी पढ़ के ये हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर रहा है कि हाँ, कंपनी करती है इन प्रॉब्लम्स को टैकल, बट इन सर्टेन कंडीशंस अगर ये प्रॉब्लम दूसरे एंड पर हो तो हमें ये एड्रेस नहीं कर पाते हम। यानी आप 1 ईयर की करो, मेरा वारंटी में था ये चीज़, तो फिर क्यों नहीं कंपनी एड्रेस करी इस प्रॉब्लम को? क्यों? क्योंकि ये वर्कमैनशिप में डिपेंड है या मटेरियल में ही डिपेंड है, ठीक है। ये खैर जो भी हैं, ये जब इनके सामने पेपर आएगा तो इनकी इंशाल्लाह ये रियल में ही ये साउंड्स निकलेंगी। खैर, लेट मी रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द मीटिंग। और जब मैंने काफ़ी ऐसी रियल की देखी हैं एग्जांपल्स जिसमें पेपर की मार्किंग जब हुई है तो बच्चों की ऐसी रियल की आवाज़ें निकली हैं। तो आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन रादर। और अपनी जो है ना क्लास के ऊपर आप फोकस करो। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम अबाउट टू कनेक्ट माई लैपटॉप विद द चार्जर और मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके एवरीवन, लेट मी नो कि मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी। ओके देन फाइन, हम जरा थोड़ा सा इसको continue करते हैं। बात क्या हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है कि आपका जो है ना ईमेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है और आपने किस तरह से प्रॉब्लम को एड्रेस, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि ये स्टूडेंट्स को एड्रेस करना आना चाहिए। इफ सम person is sharing email with them, they must be enabled। ये कोर्स ही आपका ये डिमांड करता है कि आप इनेबल हो किसी को अच्छे से रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। तो फॉर दैट सेक हमारा वो बेसिक कंसर्न है। देन आगे हम बात करते हैं कि जी ये, हाँ जी, आगे उसने क्या कहा है, वी कैन नॉट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय बैड गैसोलीन, ये भी उसने डायरेक्ट बताया। वी कैन नॉट देयरफॉर ग्रांट योर रिक्वेस्ट टू रिपेयर। अब देखो ये यहाँ पर क्लियरली बताता है कि कौन सी रिक्वेस्ट हम एक्सेस कर सकते हैं और कौन सी हम जो रिक्वेस्ट है वो उसको हम नहीं अवेल कर सकते या नहीं फुलफिल कर सकते, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। देन आगे क्या आ जाता है, however no serious harm was done to the snowmobile, we would be happy to flush the fuel line at cost। हाँ, हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ उसने कॉस्ट बता दी है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप सिंपली कहो कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आगे से जी फील करे कि डिसरिस्पेक्टेड हो गया। आपने कभी भी किसी को ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी जिससे वो डिसरिस्पेक्टेड फील करे, ठीक है। ये बात समझ आती है ना? आप जब भी कोई लैंग्वेज, जी क्लास अपने आप को अनम्यूट करके मेरे साथ आपने ज़रूर अटैच रहना है।
इंटरनेट को क्या हो गया इस टाइम पे अभी? लेट मी नो कि मेरी वॉइस ऑडिबल है। आई गॉट डिसकनेक्टेड ड्यू टू सम इशू, तो आप मुझे बताओ वॉइस मेरी क्लियर है? ओके, प्लीज़ लेट मी शेयर माय स्क्रीन, हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जो भी खैर इशू हो रहा है। तो बात हम ये कर रहे थे कि जी यहाँ पर हमने टेक्निकल राइटिंग डिस्कस किया जी। अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, दोबारा से मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूँ। दूसरे मोबाइल फ़ोन से भी मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, ताकि अगर मैं एक से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो दूसरे से आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। ओके, अच्छा जी। क्लास, लेट मी नो मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना आप सबको? और मेरी स्क्रीन भी अभी, वेट अ मिनट, मेरी स्क्रीन भी अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसका भी मुझे बता देना, ठीक है? जी अच्छा जी, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है? ओके, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। बात ये करना चाह रहे थे हम यहाँ पर कि आपकी जो ईमेल्स हैं उसमें रिटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या आप कन्वे करना चाह रहे हो आपके ऑडियंस को, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ना, ये तो कंपनी की बात ही नहीं है, एज अ क्लाइंट या फिर एज अ जो है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो, सेलर भी, यू आर नॉट you not have to make the other person feel disrespected। आपकी लैंग्वेज के थ्रू कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्टेड ना फील हो। तो इसमें प्लेन लैंग्वेज में भी आप ये देखो, इसने अपनी $30 कॉस्ट भी बताई, इसने इशू भी बताया कि हाँ इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी कंपनी किन कंडीशंस में टैकल करती है और किन कंडीशंस में टैकल नहीं करती। सिमिलरली अगर मैं आपको आपके पेपर में क्वेश्चन दे दूंगी ना कि राइट एन ईमेल टू अ पर्सन हु इज एड्रेसिंग सम प्रॉब्लम, तो आपने सिंपली उस प्रॉब्लम को समझना है पहले, देन यस या नो में उसको रिस्पॉन्ड करना है कि वेदर यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम अंडर द कंपनीज पॉलिसीज या फिर आप नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर में इससे रिलेटेड गिवन होंगी। अब मुझे ये यहाँ से थोड़ा सा हम एक और देख लेते हैं। इफ यू विल ऑथराइज अस टू डू दिस वर्क वी विल हैव योर स्नो मोबाइल बैक टू यू within 4 working days। just fill out the attached authorization statement and return it as an attachment। तो उसने सिंपली बता दिया कि हाँ ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस है कंपनी की और आपने इस तरह इसको फुलफिल करना है। तो ना कंपनी का रूल कोई वोलेट हुआ, ना वो डिसरिस्पेक्टेड फील करे। तो अब बताओ, ये क्लियर है आप सबको? ओके, कम्युनिकेट ऑनेस्टली की बात होती है कि आप ये तो नहीं ना, मैं बता देती हूँ। देखो आप बात ये है कि सिंपली अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आपको ईमेल आ जाती है कि ये इशू एड्रेस कर दें, आप सिंपली देखोगे क्या मेरी कंपनी अलाउ भी करती है इस बात को, या मैं खुद से ही उसको जी आप आए अपना कोई भी काम लेकर आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू टेल दैट पर्टिकुलर पर्सन अंडर विच कंडीशंस द कंपनी can solve that problem and under which conditions this is not the stuff that we are offering to the clients। यानी इन कंडीशंस में हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज नहीं देते, हाँ बट पेड सर्विसेज, जैसे उसने कहा ना कि ये फॉर्म फिल कर दें, $30 आप पे करें तो हम आपको सर्विसेज दे देंगे। तो ये बात एक सिंपल मैंने बताई है अभी तक, ठीक है? इसको आप अपने पास इसको स्पेसिफिकली रीड करना एंड देन आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्या हो रही है। कम्युनिकेट ऑनेस्टली हमें ये कहता है कि आप अपनी जो कंपनी है उसकी पॉलिसीज ऑनेस्ट बताओ, ना कि अपने से फैब्रिकेटेड या कुछ बना बना के बता दो। लेटर क्या होता है आगे उसको देख लेते हैं। जैसे लेटर में सैल्यूटेशन, और ये तो आपको आइडिया है ही है, हेडिंग एक प्रॉपर आपकी जो है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको प्रॉपर शेयर कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे लेटर का स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू कि आपने सबसे पहले अपना बताना होता है एड्रेस, देन आपने किसको एड्रेस कर रहे हो उसका बताओगे, सब्जेक्ट लाइन आप ऐड करोगे, डू यू नो हाउ मच ट्रीज आर वर्थ,
That's right, your trees. As a maintenance director, you know how much an investment your organization has in its physical parts, and the landscaping is a big part of your total investment. So इसने अब ये क्या बताया, एज अ मेंटेनेंस डायरेक्टर यू नो, यानी वो बंदा जिसको ये लिख रहा है वो मेंटेनेंस डायरेक्टर है. Most people don't know that even the hardiest trees need periodic care, like shrubs, trees should be fertilized and they should be protected. ये बात ठीक है. We have the skills and experience to keep your trees healthy. ये भी बात हो गई. Our diagnostic staff is made up of graduates of major agriculture universities, and all of our crews attend special workshops to keep current with the latest information. Add to this our proven record of 43 years service, and you have a company you can. अच्छा, ये सारी बातें अगर कोई इंसान आपको आके बताए मेरी कंपनी में ये बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी कंपनी के बहुत ज़्यादा देर से, तो आपसे क्या चाह रहा होगा, क्या चाह रहा होगा? यानी आप उसकी कंपनी से कोई किसी ना किसी को हायर करो ना. मे वी स्टॉप बाय टू गिव यू एन एनालिसिस एब्सोल्युटली विदाउट कॉस्ट और ऑब्लिगेशन. स्पेंडिंग अ फ्यू मिनट्स विद वन ऑफ आवर diagnosticians could prove to be one of the widest moves you will make. Just call, we will be happy to arrange an appointment. अच्छा, अब ये बात क्या है? देखो, मैं दोबारा मीटिंग कॉल की तरफ आती हूँ. मैं अगर आपको आके बताना शुरू कर दूँ कि जी क्लास, मेरे पास बहुत अच्छा सा जो है ना एक मेरे पास जो है ना एक प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है. वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको मैं बिल्कुल फर्स्ट 10 बायर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी, एंड इट विल हेल्प योर स्किन या फिर हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे. तो वो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको, इसका रीज़न है कि आप बाय करो उन चीज़ों को इन फ्यूचर. सिमिलरली ये चाहता है कि ये इंसान इसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करे, जिसकी वजह से उसने लेटर लिख के अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक बंदे के बारे में बताया है कि हाँ, इस तरह से ये इंसान है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, ये वाले ये सारे हमारे वर्कर्स हैं, कितने अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, हमारी कंपनी कितने साल पुरानी है. ये सारी बातें बताती है कि हाँ, कंपनी ऑथेंटिक है. देन आगे बात हो रही है कि आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें. अब ये किसको भेजा जा सकता है? ये क्लाइंट्स को भेजा जा सकते हैं. इस तरह के लेटर्स अननोन लोगों को भी भेजे जा सकते हैं, ताकि आपकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने फेमिलियर हो. ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपने देखना है कि हीडर है, बॉडी उसकी, देन कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, सिंसियरली योर्स जैसे आपने लिख लिया, सिग्नेचर नीचे करते हैं हम, लेटर का सिंपल स्ट्रक्चर है, देन उसका थोड़ा सा कि आपने उसको बनाया कैसे. एक और हम आगे देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स और लेटर की, ये आपको उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि आप कंपनी का लोगो कैसे लिखते हो. बट आई विल रियली सजेस्ट कि आप सिंपल इस वाले को फॉलो कर लो, कम ये वाले को, कि मे 11 है, ये सिंपली डेट एंड स्ट्रक्चर्स हैं, देन डियर स्मिथ, और आगे इसका सिंपल. थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके दिखाती हूँ आपको. मिस्टर जॉन स्मिथ, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, मेसेलियन डेंटल. इसको नहीं, आप लोकेशन देखो. पेपर में मैं अगर आपको कहूँगी ना राइट अ लेटर, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने लेटर लिखना किसको है. ये यहाँ पर वो इंसान मेंशन हो जाएगा, देन मेंशन हो जाएगी उसकी प्लेस, और देन उसका जो अगर एक आधा और कोई रोल है तो वो मेंशन हो जाएगा, तो डियर उसका आगे नाम. तो ये ना करना कि ABC जैसे पेपर में 7th 8th क्लास में, ऐसा नहीं होने वाला. आपने एडजस्ट करना है प्रॉपर नेम को उस प्लेस पर, ठीक है. अच्छा जी, आगे हम आते हैं. ये वाला एक रिटन स्ट्रक्चर देख लेते हैं लेटर का. आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज ऑफ Orion's reputation as a leader in the manufacture of adjustable x-rays. I'm a graduate student in biometric engineering and I'm working on an analysis of diagnostic equipment for the seminar. Would you be able to answer? अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट है और वो वर्क कर रहा है, यानी एनालिसिस बिल्डअप कर रहा है, तो उसने किसी को ये लेटर लिखा. और देखो, अगर मैं ये क्वेश्चंस को पैराग्राफ की फॉर्म में आगे लिख देती तो आपने ना अपना, तो रीडर को पता नहीं चलता क्या बात है. रीडर के लिए आपने अपनी राइटिंग आसान बनानी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, इसी को ही एडजस्ट करते हैं, बल्कि लेटर कॉपी पेस्ट यहाँ से नहीं होगा. हम देखो अपना राइटिंग स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मैं एक पूरा पैराग्राफ लिख देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ, पैराग्राफ है जैसे. तो पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ना आसान ज़्यादा होता है या बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में? क्विकली मुझे अनम्यूट करके आंसर करना ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. बुलेट पॉइंट्स. तो इसी तरह से आपके जैसे 3 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो कि आप चाहते हो एड्रेस हो, उनको हमने 1 2 3 करके लिखा, ताकि देखते साथ ही हमारा जो रीडर है वो आगे उसको रिस्पॉन्ड करे. देन पैराग्राफ में मैंने अपनी रीज़न बताई कि हाँ, इसको आप ऐसे एड्रेस करोगे, मुझे इसकी ज़रूरत है,
ठीक हो गया। कुछ और एग्जांपल्स है वो आपने गो थ्रू करनी है लेटर्स की। आपको ये जब आप पढ़ लोगे ना, बेसिक आपके पेपर का ये कंसर्न है, तो आपको रियल लैंग्वेज का आइडिया होगा कि हाँ इस तरह से लेटर्स, और इसी तरह की आपको सिनेरियोज में पेपर में बल्कि पूछूंगी कि हाँ भाई राइट एन लेटर टू द पर्सन एड्रेसिंग दिस इशू। तो आप यही सिनेरियोज बल्कि इसी तरह के लेटर्स क्रिएट करोगे बाय योर सेल्फ। तो इनको अच्छे से डिटेल में रीड करना, ठीक है। स्टिल अगर कोई इशू हुआ उसमें तो मुझसे पूछना। अब हम मेमोज की तरफ आते हैं जी। मेमोज क्या होते हैं? मेमोरेंडम्स जैसे हमने बात की थी। राइट 1 month इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द न्यूमरल्स। अच्छा देखो, अब हम अगर किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हैं, हम सिंपली लिखेंगे टू, देन फ्रॉम, देन सब्जेक्ट क्या है और डेट। ये तो सिंपल आ गया। इंटर ऑफिस, अच्छा ये है राइट आउट द मंथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द न्यूमरल्स। ये अगर आप मंथ और जो उसका बाद बताना चाह रहे हो। इंटर ऑफिस यानी ऑफिस में ही अगर ये सर्कुलेट होना है तो टू फ्रॉम सब्जेक्ट लाइन इस तरह से लिख दोगे। बात एक ही है दोनों को लिखने की, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि टू और फ्रॉम और सब्जेक्ट लाइन और डेट लाजमी लिखी हुई हो। देन आ जाता है आपका हाँ, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अब हम एक मेमो का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई ये होता किस तरह का। बेसिक यही आपकी कोर्स आउटलाइंस के पार्ट हैं, तो इसको समझ कर रखना। मैं बल्कि कोर्स आउटलाइन अगर मैंने ओपन की हुई है तो मैं आपके सामने देख भी लूँ कि यही है जी। टेक्निकल राइटिंग की आती कोर्स आउटलाइन, ईमेल्स के ऊपर फोकस आपका हो, आपका बिजनेस लेटर्स पर हो, और मैम बिल्कुल यही तीन चीज़ें आपकी फोकस में है। सीवीज का मैं फॉर्मेट भी बता देती हूँ, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप फोकस करके रखना जी। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपने जो है मेमोरेंडम में फर्स्टली तो ये बताया टू फ्रॉम क्या है भाई, आपका टॉपिक क्या है। देन आपने बताया द पर्पस ऑफ दिस मेमो इज टू प्रेजेंट माय इंप्रेशन ऑफ द कंप्यूटर डायनामिक। द गोल ऑफ द सेमिनार वाज, पर्पस और गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि पर्पस क्या है, प्रेजेंट माय इंप्रेशन, गोल क्या है, वॉज टू इंट्रोड्यूस द कंपनी। यानी एक मैं अपने जो है ना मेमो का पर्पस मेरा ये है और सेमिनार का जो गोल है वो मेरा ये है। तो सेमिनार में ही आप मेमोरेंडम प्रोवाइड कर रहे होगे या अपनी कंपनी में सर्कुलेट कर रहे होगे। समरी प्रोवाइड करो, क्यों? क्योंकि आजकल के रीडर्स कभी भी बहुत लंबी लंबी चीज़ों को नहीं पढ़ते, वो शॉर्ट चीज़ या पॉइंट्स में लिखी हुई बात को पढ़ना अच्छा समझते हैं। तो पेपर में मुझे कोई भी 4-4 10-10 पेजेस का ईमेल या लेटर ऐसा कोई ना प्रोवाइड करे। जस्ट वन साइड में आपसे मांगूंगी और उसमें मुझे लैंग्वेज का, आपकी रिटन स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट को कितना लिखना आ रहा है। तो ये बात भी जहन में रखना कि मुझे लेंथी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे जस्ट टू द पॉइंट कंसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। So in general, I was impressed with the technical capabilities and interface of the drives. One of the two models, ठीक है, I think we ought to consider the external device, not the internal ones. I would like to talk to you about the issue when you have a chance. यानी सिंपल वो external और internal ones के बारे में बात कर रहा है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो जो दो मॉडल्स हैं 500 सीरीज के, कोई सीरीज है जिसकी मॉडल्स की वो बात करना चाह रहा है और डिस्कस करना चाह रहा है इशू। तो मुझे समरी को देखकर ही आइडिया हो गया कि हाँ अब ये मेमोरेंडम किस बारे में होना चाहिए। डिस्कशन बात है ऑफ द प्रोडक्ट ऑप्शंस के, वो आप थोड़ा सा डिटेल बताओ, हाँ ये चीज़ें हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप मुझे आके कहते हो कि मिस हम आपसे ना ज़रा चैप्टर नंबर 1 पर डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझे आइडिया हो गया कि हाँ स्टूडेंट चाह रहे चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में भी तो कोई ऐसी बात है ना जिसमें आप पूछना चाहते हो कि भाई चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, कौन सी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हो उसमें। तो ये डिस्कशन वो बताएगा कि हाँ ये वाली चीज़ें डिटेल में फिर आप आगे बता दोगे कि ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। recommendation आप देते हो कि I would like to talk to you when you get a chance when negotiating with the computer dynamics. I think we should ask Kelly and other persons to participate as well in the discussion. तो इस तरह का मेमोरेंडम होता है जिस पर आप एक इशू को एड्रेस करते हो, ठीक है, उसमें एक समरी प्रोवाइड करते हो कि मैं इस इशू को क्यों एड्रेस करना चाह रहा हूँ। देन आप बताते हो कि ये रीजंस हैं और मैं ये जल्द अज जल्द इस पर मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके मेमोरेंडम का है। इसकी डिटेल्स ज़रूर यहाँ से रीड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा मुझे अब बताओ यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम आगे थोड़ा सा मूव करें।
सिंपली अनम्यूट करना, टाइप ना करना, बिकॉज मेरी स्क्रीन सिर्फ यहीं पर मेरा फोकस्ड है फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ईमेल हमारे पास सिंपल होता है। अगर आप फ्रॉम सीसी में लिखते हो एक इंसान को, सीसी का क्या होता है, आप फ्रॉम और टू किसी को अगर भेजना चाह रहे हो, दूसरों को आप सीसी में रखकर, यानी बाकी पार्टिसिपेंट्स को, आपके ओवरऑल काफ़ी सारे ईमेल्स और भी तो हो सकते हैं जिनको आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, तो उन सब का ईमेल्स आप सीसी में डालो और बाकी का फ्रॉम और टू में डालो, एंड देन यू कैन सिंपली शेयर एन ईमेल। ठीक है। देन आ जाता है आपका ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, ये माइक्रो ब्लॉग्स हमारा पार्ट नहीं है, तो ये ज़रूर समझ कर बैठना कि सारे सारे चैप्टर्स नहीं, बिल्कुल फोकस्ड होके आपने पढ़ाई करनी है। जी यहाँ तक अब सोचो, अपने जहन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछो, मैं ज़रा सीवी का स्ट्रक्चर आपके सामने तब तक डिस्प्ले करूँ कि सीवी का स्ट्रक्चर किस तरह। सीवी बहुत सिंपल सा बेसिक पार्ट है, तो थोड़ा सा हम उसको डिस्कशन में लेकर आते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों को आपने कम फोकस में लाना है। ठीक है। अच्छा जी, देन हमारी जो सीवी का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आई थिंक इमेजेस में अपने पास डाउनलोड किया है, मैं उसको ओपन करती हूँ। तब तक आप लोग अपने पास सोच रखो कि आपके क्यूरीज क्या हैं। देखो, स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात स्ट्रक्चर है, देन पर्पस भी होता है। जैसे अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ सर्कुलेट कर रहे हो, तो वो मेमोरेंडम है जिस पर आप एक मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हो लोगों में, तो पर्पस कितना डिफरेंट हो गया ना, कि पर्पस, मेमोरेंडम का पर्पस क्या है, वो हमारा है एक मीटिंग अरेंज करना या उस इशू को उस ऑर्गेनाइजेशन में क्विकली सॉल्व करना। जो हमारा लेटर होता है और ईमेल होता है, उसमें थोड़ा सा पर्पस ना ओवरलैप कर जाते हैं, यानी ईमेल बहुत ब्रॉड है। अब ईमेल को हमने जो रियल अब का जो वर्ल्ड जा रहा है, उसको हमने सिंपल एक चीज़ पर नहीं सिर्फ कर लिया हुआ, इसको बहुत ब्रॉडर रखा हुआ है हमने इस टर्म को। तो ईमेल्स बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करती है, दैट इज़ वाई ये लेटर के पर्पस को भी फुलफिल कर देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ठीक है ना। मतलब आपका जो लेटर है, क्या जो हम लेटर लिख रहे हैं वो ईमेल में नहीं आ सकता, वो आ सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेटर और ईमेल आपस में ना आ सकें जी। अच्छा, बाकी हम अपना जो दूसरा मेरा इमेजेस का है, मुझे वेट अ मिनट प्लीज। अच्छा खैर, आई विल शेयर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सीवी विद यू, बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल जो है ना वर्बली बताती हूँ कि सीवी और ईमेल में होता क्या है। ठीक है। बाकी मैं आपके साथ उसकी पिक्चर अभी ग्रुप में ड्रॉप कर देती हूँ। आई एम अनएबल टू शेयर दैट इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप में कहीं पर पड़ी हुई है। मैं आपको पिक्चर ड्रॉप करती हूँ और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब सीवी का जो स्ट्रक्चर होता है, सीवी में आपने अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। सीवी में आपने अपना जो एजुकेशन है, उसके साथ साथ आपने जो है अपना बैकग्राउंड यानी स्किल्स, नॉलेज, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है। अभी आपको ये मेरा मैसेज रिसीव हो जाएगा, अगर अभी क्लास में कोई प्रेजेंट कर दे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो ये आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, सीवी और रेज्यूमे किसी को डिफरेंस का आइडिया हो, पहले मुझे वो बताएं क्विकली। अच्छा, अगर नहीं आइडिया तो मैं बता देती हूँ। देखो, सीवी में आप सिंपली लिखते हो अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस। अच्छा, एज एन न्यू एंड अ फ्रेश ग्रेजुएट आप अपना एक्सपीरियंस पहले नहीं लिखते हो, आप अपनी एजुकेशन पहले लिखते हो, और देन यू राइट अबाउट दी। जी, आपको रिसीव हो गया सी आर और जी आर? प्लीज़ क्विकली अगर आप इसको प्रेजेंट कर सको, जो मैंने पिक्चर्स अभी शेयर की हैं, क्विकली। हाँ जी, प्रेजेंट के ऑप्शंस हैं। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। इसको थोड़ा जूम, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सीवी का स्ट्रक्चर। अच्छा, आप सीवी में सिंपली आपने अपनी नॉलेज, आप कभी भी अपना एक्सपीरियंस पहले नहीं लिखते हो। क्यों? क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, एक्सपीरियंस कैसे पहले ला सकते हो? एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपने एजुकेशन लिखनी होती है, अपना ऑब्जेक्टिव एक छोटी सी जो आपने अपनी टीचिंग से रिलेवेंट है तो टीचिंग का, या एज अगर आप जैसे एआई के स्टूडेंट्स हो मोस्ट, तो इस वजह से आप अपने एआई से बैकग्राउंड एक छोटा सा अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करोगे।
देन आप अपनी एजुकेशन बताते हो, थोड़ी सी स्किल्स जो आपकी हैं, और कुछ अगर आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं वो आप मेंशन कर देते हो सीवी के अंदर। तो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो। अच्छा, सीवी में कुछ रॉन्ग या वेग इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करना। उसकी रीज़न पता है क्या है? अगर आप वेग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और आपका इंटरव्यू ही जो आपसे क्वेश्चनिंग कर लेगा कि ये बताएं इस बारे में, तो आप फंस जाओगे। ऐसे ही है ना जी, क्लास ऐसे ही है। तो इस वजह से आपने अपनी सीवी को बहुत कंसाइज रखना है और थोड़ा ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं लिखना जिसको आप डिफेंड ना कर सको। मेरी बात दोबारा सुनना, सीवी में कुछ भी ऐसा ना लिखो जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हो। एक होता है वर्ड में सीवी बनाना, एक होता है कैनवा पे सीवी डिजाइन करना। कैनवा की सीवी का ये फॉर्मेट है जो आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू डिस्प्लेड है राइट नाउ, जिसमें आप सिंपली अपनी पिक्चर, गर्ल्स अगर नहीं चाहती तो दे कैन ओमिट दैट ऑप्शन, वो ना करें, पेस्ट अपना नेम लिखें और इस तरह से अपनी सीवी डिजाइन कर दें। ये रेडीमेड कैनवा पर अवेलेबल टेम्पलेट है, तो इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। स्किल्स हैं कुछ और हैं जी, आपकी हॉबीज हैं। अच्छा, हॉबीज को मेंशन ऐसे नहीं करो आप जैसे किसी एआई की फील्ड में डांसिंग और सिंगिंग, तो ऐसी हॉबी हो सकती है, बट इन दी प्रोफेशनल लाइफ ये इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेशंस भी आप। अच्छा, अब सीवी और रेज्यूमे का डिफरेंस क्या होता है? सीवी होती है डिटेल्ड, यानी हर एक चीज़ जो आज तक आपने की है उस सब को आपने एड्रेस कर दिया सीवी में। लेकिन जो आपका रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे में आप सिंपल वही चीज़ें लिखते हो जो कि आप जैसे आप रेज्यूमे ड्रॉप कर रहे हो एक जॉब के लिए, तो आप उसी जॉब से रेलेवेंट उसमें चीज़ें लिखोगे। जैसे एआई के स्टूडेंट अब सारी ज़िंदगी सिर्फ एआई से रेलेवेंट तो नहीं करते चीज़ें, वो और भी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ पुलिस की इंटर्नशिप्स भी कर लेते हैं, तो आप सीवी में मेंशन कर सकते हो क्योंकि इट शोज योर लीडरशिप स्किल। बट रेज्यूमे में आप मेंशन नहीं करोगे। रेज्यूमे में सिर्फ आप हाउ यू आर, जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा हाउ यू आर फिट फॉर दैट जॉब, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, तो ये रेज्यूमे ही एक तरह से बन जाएगा आपकी सीवी। बट इररेलीवेंट चीज़ आपकी रेज्यूमे में नहीं आएगी। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो सीवी डिटेल्ड होती है, रेज्यूमे शॉर्ट होता है एंड रेलेवेंट टू दी जॉब होता है इन विच यू आर अप्लाइंग। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप ये कवर लेटर की तरफ आओ ज़रा। हम आपका ये जो ये डिज़ाइनिंग है ना सीवी वगैरह की, इसका भी इंशाल्लाह कर लेते हैं। तो आपका जो कवर लेटर है उसकी अगर हम बात करें, अच्छा वर्ड में भी ऑलरेडी टेम्पलेट्स गिवन हैं और कैनवा पे भी हैं, बट जो हमारी यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा कैनवा को करती है, जो है ना ज़्यादा कंसिडर करती है। अच्छा, कवर लेटर क्या होता है? जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड देखी फेसबुक पर कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है ना फैकल्टी की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनको मैंने ये आपको शायद यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर ना हो, मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर लेटर वाला ही होगा जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। हाँ, इसमें कंटेंट क्या आना है वो बताती हूँ। इसमें कंटेंट ये आएगा कि जो आपका कवर लेटर है उसमें आप सबसे पहले बताओगे हाउ यू केम टू नो अबाउट दैट जॉब, सिंपली, ठीक है। यानी आई फाउंड दिस, आई केम टू नो दिस जॉब थ्रू लिंक्डइन या फिर थ्रू सम अदर प्लेटफॉर्म, एंड I am suitable for this job because I have done this recently. I have supervised so many projects. तो आप सारे अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ फिर आओगे कि हाँ मैंने ये किया है और ये जो चीज़ है इसके लिए मैं वेल सूटेड हूँ, आई कैन परफॉर्म वेल। देखो, आपने ये नहीं लिखना मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, मुझे ये हो जाएगा मेरे लिए, वो हो जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं करनी होती। आपने बताना है मैं आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हूँ, ठीक है। आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बेनिफिशियल कैसे हो सकता हूँ, उसको जैसे नहीं कहते, सिंपल कह देना मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, या आपका जो काम है वो मुझे बताए कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। तो आप बताओ मैंने ये प्रोजेक्ट्स, ना कि ये बताओ आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। कभी भी ऐसा इंटरव्यू में या कहीं पर भी कवर लेटर में ये ना लिखो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, लिखो आई हैव गाइडेड द प्रोजेक्ट्स। तो इससे पता चलता है कि हाँ इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, इसमें जो है ना काम करने की सलाहियत भी है। तो अपने वर्क्स को, अपने जो आपने जो जो भी सर्टिफिकेशंस अर्न किए उनको मेंशन करके जो कि रेलेवेंट हैं, आप उसके जो है ना बताओ उसको कि जी हाँ आई एम सूटेबल
So please, I am also open for the questions, or you can call me at any time for the sake of interview. बात खत्म। उससे ज़्यादा कोई कहानियाँ गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कंसाइज वे में 2 पैराग्राफ्स में आप इसको एंड अप करो। तो ये होता है कवर लेटर, जिसको आप अपने रेज्यूमे के साथ अटैच करते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपसे सीवी मांग लेती हैं, कुछ रेज्यूमे मांगती हैं। इट मीन्स कि वो आपसे चाह रही हैं आपकी, अच्छा यहाँ पर एट दिस स्टेज आपकी सीवी ही आपका रेज्यूमे होगी, वो कैसे? क्योंकि आपने जो हमारे अभी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किए होते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, इनकी फील्ड रेलिवेंट ही बहुत सी चीज़ें। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा 40 या 35 की एज का है इंसान और उसने बहुत सारी चीज़ें की, तो उसकी सीवी बहुत डिटेल्ड होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस उनसे रेज्यूमेज मांगती हैं कि वो बहुत ही कंसाइज करके वो इन्फॉर्मेशन हमें दें कि कैसे वो हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो सीवी, रेज्यूमे और कवर लेटर में ये डिफरेंस होता है कि सीवी डिटेल्ड होती है, रेज्यूमे उसी की ही शॉर्ट फॉर्म है, और कवर लेटर लेटर की फॉर्म में लिखना है उस हेड को या उस एम्प्लॉयर को जो आपको हायर करेगा कि वाई यू आर सूटेबल फॉर दैट जॉब। जी, अब यहाँ तक मुझे सब बताओ कि कुछ इशू है तो वो हम एड्रेस करें। अच्छा जी, और सोचते जाओ जल्दी जल्दी क्विकली इसके बारे में सोचो। और इसको अच्छे से आपने रीड करना है चैप्टर 14 को, क्योंकि चैप्टर 14 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ योर